اقرأ أخيا ورتل القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. ہمارا جو ہے یہ دیکھیے گا ایکسرسائز نمبر 9 چل رہی تھی ہماری، ہے نا. یہ ختم نہیں کیا تھا ہم نے، 7 پڑھ لی، 7 ہو گئے، پڑھنا ہے. اچھا، کأن کا استعمال ہمیں تو پڑھ لیا تھا. کأن کا مطلب جو ہے نا گویا کے، ایز اف کے معنی میں پڑھا تھا، ہے نا. کہا کہ بھی من ہاد الفتح، یہ نوجوان انسان کون ہے. کأنہ اخو کا، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے. کأنہ اخو کا، یہ دیکھیں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کأن جو ہے نا ان کی فیملی میں سے ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان، جس طرح ان کے بعد جو لفظ اسم آتا ہے اس پر جو ہے نا ہم اس کو کیا کرتے ہیں، منصوب پڑھ لیتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ان لی اخن، ہے نا. تو ان کی فیملی میں سے کأن بھی ہے، تو کأن کے بعد جو ناؤن آئے گا اس پر بھی جو اس کو بھی ہم منصوب کر کے پڑھیں گے، ہے نا. اچھا، من ہاد الفتح کأنہ اخوک، وہ گویا کہ وہ تمہارا بھائی ہے. من ہادہ الطفلہ، یہ بچی کون ہے، تو کأنہ اختک، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے. کأنہ اختک، گویا کہ وہ تمہاری، تو کأن کا مطلب گویا کہ، ایسا لگتا ہے کہ، ایز اف، اٹ لائکس دیٹ، اٹ لکس لائک دیٹ، ہے نا. اٹ لکس لائک، ایسا لگتا ہے کہ، تو لگتا ہے کہ، ٹھیک ہے. تو کأنہ اختک، کأنہ اختک، ہے نا. اچھا، نمبر 1 ہوا زمیلوں کا، جیسے لکھا ہوا ہے ہوا زمیلوں کا، وہ تمہارا کولیگ ہے. لیکن اگر کہنا ہوگا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارا کولیگ ہے، تو ہم کیسے کہیں گے پھر اس کو ہم، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہارا زمیل ہے. جی، کأنہ زمیلک، کیا پڑھیں گے ہم اس کو، اب کأنہ لگا دیں گے. تو ہوا کے بجائے، ہوا زمیلوں کا کے بجائے کہیں گے کأنہ، کأنہ کأنہ پلس ہوا بن جائے گا کأنہ. کأنہ ہوا نہیں پڑھیں گے آپ یہاں پر. ہوا زمیلوں کا، جب ہوا کے ساتھ میں کأنہ لگائیں گے تو ہم کأنہ ہوا نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے، کأنہ زمیلوں کا. ہی طبیبۃ، کأنہ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے ہم اس کو، کأنہا طبیبۃ، کأنہا، ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے نا. تو کأنہ ہی نہیں پڑھیں گے آپ اس کو، کأنہ ہی طبیبۃ، کأنہا پڑھیں گے آپ اس کو، ہے نا. جس طرح انہ کے ساتھ میں ہم پڑھ رہے تھے ویسے کأنہ کے ساتھ میں بھی پڑھیں گے، ہاں. اچھا، ہم طلابن، تو کیسے پڑھیں گے ہم اس کو، کأنہم طلابن، کأنہم طلابن. اور نمبر 4 پر انت مریض، ایسا لگتا ہے کہ تم بیمار ہو، تو ہم انت، کأنہ کو انت کے ساتھ میں کأنہ لگائیں گے تو کیا پڑھیں گے پھر ہم. اب یہاں پر یہ نہیں کہیں گے کأن انت مریض، ایسا نہیں کہیں گے آپ. ہر اسٹرکچر اپنی اپنی جگہ پر سمجھنا پڑے گا اور اس کو یاد رکھنا پڑے گا. آپ ایسا نہیں کہ انتا اٹھا لیں اپنی جگہ، ایک انتا اٹھا لیں اور ایک کأنہ اٹھا لیں اور کأن انتا، آپ نیا اسٹرکچر نہیں بنا سکتے اپنا، ہے نا. جو اسٹرکچر اپنی جگہ پر ہے وہ اسٹرکچر اپنی جگہ پر، اس کو ویسے ہی یاد رکھنا پڑے گا، ہے نا. تو ہم کأن انتا نہیں پڑھیں گے، کأنک مریض. اب کأن اور انتا دونوں کو ملا کر پڑھنے کی بات آئے گی تو آپ کیسے پڑھیں گے، کأنک مریض. یہ صحیح اسٹرکچر ہے، آپ اپنا نیا اسٹرکچر نہیں بنا سکتے ہم اور آپ، کہ بھی ہم پڑھیں کہ بھی کأن انت مریض، کیونکہ آپ کہیں کہ انتا تو ایک لفظ ہے اور کأن بھی ایک لفظ، تو کأن انت مریض یہ اسٹرکچر ہو گیا، تو یہ ہمارا خود کا بنایا ہوگا یہ تو نا. تو ہم ڈیوائس نہیں کر سکتے اسٹرکچر. تو ان دونوں کا اسٹرکچر کأن اور انتا دونوں کا ملا کر جو پڑھیں گے وہ کأنک پڑھیں گے ہم، اور اس کو یاد رکھنا پڑے گا ہمیں، ہے نا. تو ہم کہیں گے کأنک مریض، کأنک مریض. اچھا، ہوا مدرس جدید، تو اس کو کیا پڑھیں گے ہم، ہوا مدرس جدید کو کیا پڑھیں، کأنہ. اب ہوا کے ساتھ میں کأنہ ملائے تو کأنہ ہوا نہیں پڑھیں گے ہم، کأنہ مریض، کأنہ مدرس جدید، ٹھیک ہے. اچھا، انت اخت مریم، انت اخت مریم، تم مریم کی بہن ہو. تو اب یہاں پر انتی کے ساتھ میں کأنہ لگائیں گے تو کأنکی اخت مریم، ایسا لگتا ہے کہ تم مریم کی. اچھا، یہ دیکھیے گا نمبر 8 کی جو ایکسرسائز ہے، یہ کہیے گی کہ دیکھیے گا، یہ 11 طالباً، 11 کو کیا کہیں گے، 11 اسٹوڈنٹ کیا کہیں گے ہم، 11 طالباً. 12 اسٹوڈنٹ کہیں گے 12 طالباً. 13 اسٹوڈنٹ کہیں گے 13 طالباً. اور 14 اسٹوڈنٹس کو کیا کہیں گے، 14 طالباً. تو رول یہ یاد رکھیے گا، 11 سے لے کر کہاں تک ہے یہ رول، 19 تک ہے یہ، ہے نا. 19 تک ہے، منصوب اور واحد، ہاں واحد پڑھیں گے، ہے نا. منصوب اور بلکہ 20 تک ہے یہ، ہے نا. 20 تک یہ رول ہے یہاں پر کہ بھی جو ہے نا ہم کیا کریں گے، اس کو واحد اور منصوب پڑھیں گے. 20 طالباً، 20 طالباً، ٹھیک ہے. اور 20 کے ساتھ میں جو ہے 30 طالباً، 40 طالباً، 50 90 90 تک بھی یہی چلے گا.
صرف اتنا ہے نا. اچھا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد نمبر 9 کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. اقرا ما یلی ثم اکتبہ ما. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ جو ہے نا جو نیچے لکھا ہے انہوں نے عدد لکھا ہوا ہے, آپ اس کو جو ہے نا پڑھیے. جیسے کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, ابھی دیکھیے گا نمبر 1 میں فی الفصل, اب انہوں نے صرف جو ہے نا گنتی لکھ دی ہے. آپ اس کو لفظوں میں بول کر دیکھیے گا. فی الفصل کتنے اسٹوڈنٹ ہیں؟ فی الفصل 19 طالباً. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ فی الفصل 19. ہم اس کو کچھ اور نہیں پڑھ سکتے, کچھ اور پڑھیں گے تو جو بھی پڑھیں گے وہ غلط ہے. 19 کے علاوہ جو بھی پڑھا جائے گا غلط ہے, ٹھیک ہے. تو فی الفصل 19 طالباً. نمبر 2 پر پڑھیے, کیا لکھا ہوا ہے؟ باللغت العربیہ. عندی 15 ہاں کتاباً باللغت العربیہ. کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ میرے پاس 15 کتابیں ہیں لغت عربی زبان میں. 15 زبانیں, 15 کتابیں ہیں 15 کتابیں میرے پاس عربی زبان میں 15 کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ 12 باللغت الفرنسیہ. اور فرنچ لینگویج میں کتنی کتاب میرے پاس؟ 12 کتابیں ہیں. اس جملے کو پڑھیے. رأى یوسف. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ رأى یوسف. رائی نہیں پڑھیں گے, یہ الف مقصورہ ہے. یہ نقطے ہوں گے تو یا ہے, یہ یا نہیں ہے, الف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ کیسے لکھتے ہیں آپ؟ موسیٰ کے اندر ایسے ہی لکھتے ہیں, تو وہی ہے وہ. موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم جو لکھتے ہیں تو وہ الف ہے, وہ یا نہیں ہے. ورنہ اگر یا ہوتا تو آپ موسی پڑھتے ہیں آپ اس کو. اگر وہ یا ہوتا, موسیٰ اور عیسیٰ میں جو یا لکھی جاتی ہے, اگر وہ یا ہوتی تو ہم اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ موسی اور عیسی پڑھتے ہیں. اس کا مطلب وہ یا نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ الف مقصورہ کہتے ہیں اس کو ہم. الف ہی ہے وہ. کیا کہیں گے ہم اس کو؟ الف ہے وہ بھی. یہ الف ہے, یہ یا نہیں ہے. یا 2 نقطے ہوں گا تو یا ہوں گے. یہ دیکھیے گا 2 نقطے نیچے, اس کے اوپر نمبر 2 پر دیکھیے, اسی کے اوپر نمبر 2 پر یا 2 نقطے ہیں. تو جس کے نیچے 2 نقطے ہیں وہ یا ہے, اور جس کے نیچے 2 نقطے نہیں ہے وہ الف ہے. یاد رہے گا یہ؟ عندی یا کے نیچے 2 نقطے تو وہ یا. ہاں تو موسیٰ اور عیسیٰ کے آخر میں جو ہے وہ الف ہے, وہ یا نہیں ہے. اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں ہم, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس کو رائی نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ رآ. کیا پڑھیں گے اس کو ہم؟ رآ یوسف علیہ السلام فی المنام. منام کا مطلب خواب. منام کا مطلب خواب. قرآن میں آیا ہوا ہے انی رأیت فی المنام. رویا کا مطلب بھی خواب ہوتا ہے. جی قرآن کی آیت ہے کہ نہیں, انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو منام کا مطلب خواب. منام کا مطلب خواب. تو رآ یوسف علیہ السلام فی المنام. کوکب کا مطلب ستارہ. کوکب کا مطلب نجم کا مطلب بھی ستارہ, اور کوکب کا مطلب بھی ستارہ. کوئی فرق نہیں ہے, کوئی فرق نہیں. انگلش کے اندر بھی ایک ہی چیز کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں, 2 3 سینونیمس ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. دوستوں کو ہم جو ہے نا فرینڈ بھی کہتے ہیں, کولیگ بھی کہتے ہیں, میٹ بھی کہتے ہیں, ہے کہ نہیں. جو سینونیمس ہوتے ہیں وہ مترادفات ہوتے ہیں, سب ہم معنی لفظ ہوتے ہیں. تو کوکبن کا مطلب ستارہ. تو اب اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ نہیں 11. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ 11 کوکبن. رأى یوسف علیہ السلام فی المنام 11. دیکھیے گا 11 کو ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ سب سے اوپر کیا پڑھا ہے ہم نے؟ دیکھیے گا سب سے اوپر 11 کے اندر 11. وہ مؤنث کے لیے, وہ مؤنث کے لیے آگے آنے والا ہے. وہ کیا جس کے لیے مؤنث کے لیے وہ آگے آئے گا, آگے آنے والا ہے وہ, ہے نا. تو مذکر کے لیے مذکر کی شکل ہے 11. کیا ہے یہ؟ لیکن فیمیل ہوگا تو 11 تھا, وہ آگے آنے والا ہے نا. تو یاد رکھیے گا مذکر لفظ کے ساتھ میں 11, مؤنث لفظ کے ساتھ میں 11 اور 10. 11 کے ساتھ میں 10 پڑھیں گے اب وہاں پر, ٹھیک ہے نا. اچھا تو رأى یوسف علیہ السلام فی المنام, آگے آئے گا وہ فی المنام 11 کوکبن. کیا پڑھیں گے ہم اس کو؟ 11 کوکبن, 11 ستارے. اب اس کو پڑھیے نمبر 4 کو. 20 ریالا. ریالا یہ سمپل ہے, اس میں جو ہے نا کمبائنڈ نہیں ہے, ایک ہی لفظ 20. عندی
20 عندي 20 عندي 20 रियालन, मेरे पास 20 रियाल है. अच्छा अब इसको पढ़िए नंबर 5 को. कम फुंदुकन फी शारिअ, क्या मतलब कम फुंदुकन फी शारिअ, कितने होटल्स हैं इस रोड पर? हाँ इस रोड पर कितने होटल हैं, तो जवाब दीजिए इसमें फीही, फीही सलासत क्या कहेंगे हम इसको, फीही सलासत अशरा फुंदुकन, क्या कहेंगे हम इसको, सलासत अशरा फुंदुकन, सलासत अशरा, सलासता क्यों मुअन्नस लगा रहे हैं हम, क्योंकि जो ना मादूद मुज़क्कर है, अदद का पहला टुकड़ा हम मुअन्नस कह रहे हैं ना, सलासत अशरा, क्या कह रहे हैं हम, सलासत अशरा, अदद का पहला टुकड़ा हम मुअन्नस इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं, क्या रीज़न है, मादूद मुज़क्कर है इस वजह से अपोजिट इस्तेमाल करेंगे, नहीं बस पहला टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे अपोजिट, ठीक है. तो फीही सलासत अशरा फुंदुकन, फीही सलासत अशरा, हाँ तो अपोजिट जो पहला टुकड़ा सिर्फ पढ़ा जाएगा, दूसरा नहीं, दूसरा सेम होगा, वो सिर्फ 11 और 12 में है सिर्फ, बस 13 से ये रूल चलेगा, 11 और 12 में ये दो ही में है वो, है ना. अच्छा नंबर 6 को पढ़िए. फी हादिहिल मदीनती, फी की वजह से जेर पढ़ना पड़ेगा आपको, फी की फी हरफ जर है, फी क्या है, तो फी के बाद जो भी लफ्ज आता है उसको मजरूर पढ़ते हैं, तो फी का इफेक्ट पड़ गया हादिही पर, और हादिही के साथ में चूंकि अल मदीना भी लगा हुआ है, दोनों एक ही लफ्ज है असल में, है ना, उसको बाद में समझ में आएगा आपको ये, लेकिन आप इसको पढ़िए फी हादिहिल मदीनती, फी हादिहिल मदीना तो नहीं पढ़ सकते हम इसको, क्या पढ़ेंगे हम इसको, हादा के साथ में जो लफ्ज लगा उसको भी वही एराब दीजिए, हादा के ऊपर जो एराब लगा रहे हैं, हादा के बाद जो लफ्ज लगा हुआ है उसको भी वही एराब लगा कर पढ़िए, ये याद रखिएगा हमेशा, है ना, ठीक है ना. फी हादिहिल मदीनती, जी कितने हैं, 14 मस्जिदन, 14 मस्जिद, 14 मुअन्नस क्यों पढ़े, मस्जिदन मुज़क्कर है, वही रूल. अच्छा नंबर 7 पढ़िए. हाँ इस किताब की समन का मतलब कीमत, है ना, समनु हादल किताब, इस किताब की कीमत कितनी है, कितनी है वली साहब, क्या पढ़ेंगे इसको हम, 17 रियालन, समनु हादल किताबी कम समनु हादल किताब 17 रियालन. नंबर 8 को पढ़िए. फी हादल किताबी 20 दरसन, कितने हैं, 20, अशरून नहीं, 20, अशरा अलग लफ्ज है, 20 अलग है. अशरा वो सही है अपनी जगह पर जबर के साथ में, यहाँ पर अशरून नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जेर के साथ, तो फी हादल किताब 20 दरसन. उसके बाद नंबर 9 पर क्या लिखा है, फिस सनता पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ना चाहिए वली से जी, फिस सनती क्या हुआ, क्यों पढ़ेंगे फिस सनती, फी की वजह से, जो भी पढ़िए समझ के पढ़िए, रीजन बताइए उसका. फिस सनती इतना अशरा शहरन, फिस सनती, शहर का मतलब महीना, शहर का मतलब साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो वही कह रहे हैं कि फिस सनती, इसमें ये होगा ना फिस सनती इतना अशरा, नहीं शहर मुज़क्कर है ना, तो हमें मुअन्नस इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपोजिट इस्तेमाल नहीं. 11 और 12 के अंदर ये 11 और 12 जो है ना, ये एक्सेप्शन है इनसे, मैंने बताया ना कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है, 13 to 20 रूल पढ़ा ना हमने, हमने रूल कहाँ से पढ़ा हुआ, ये 13 to 20, 11 और 12 उसमें नहीं है शामिल ना, 11 और 12 जो है ना सेम पढ़ेंगे, ये मुज़क्कर है, मादूद मुज़क्कर है तो मुज़क्कर ही पढ़ा जाएगा उसको. रूल जो हमने पढ़ा हुआ है कहाँ से पढ़ा हुआ, 13 से लेकर 20 तक है वो रूल. 11 और 12 जो है ना सेम, अगर ये मुज़क्कर है तो मुज़क्कर पढ़ेंगे, मादूद मुज़क्कर है तो अदद को मुज़क्कर, मादूद मुअन्नस है तो अदद को मुअन्नस, सिर्फ 11 और 12 के अंदर, सिर्फ 11 और 12 के अंदर. तो रूल कहाँ से है वो, 13 से, रूल कहाँ से है वो, 13 से लेकर 20 तक का रूल है वो, इसलिए हमने शुरू में बताया था कि 13 से लेकर 20 तक है, यही कहा था हमने, 13 से लेकर 20 तक. अच्छा नंबर 10 की एक्सरसाइज है, जैसे कह रहे थे कि 1 2 3 4 5 6 हम ये कह रहे हैं अभी, 11 12 13 14 ऐसे कह रहे हैं हम, लेकिन पहला दूसरा तीसरा कहना होगा तो अल अव्वल असानी ऐसे कहेंगे हम. तरतीब हम कैसे कहते हैं, हम कह रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन कहना होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा,
تو ہم کہیں گے پہلا تو کہیں گے الدرس الاول، پہلا سبق الدرس الاول، دوسرا سبق الدرس الثانی، تیسرا سبق الدرس الثالث. تو اچھا ثلاثہ سے ثالث، ثلاثہ سے کیا پڑھیں گے ہم؟ ہاں. اور الدرس الرابع، الدرس الخامس، الدرس السادس، ہے نا. چھٹا سبق، ساتواں سبق الدرس السابع، آٹھواں سبق الدرس الثامن، نواں سبق الدرس التاسع، اور 10واں سبق الدرس العاشر. تو دیکھیے گا عشرہ سے عاشر، تسعہ سے تاسع، یہ یاد رکھنا پڑے گا آپ کو. یہ جو ہے نا یہ کام میں آتا ہے. یہ پہلا دوسرا تیسرا کہنے کے لیے ایسا کہیں گے ہم، اول ثانی ثالث رابع خامس، ہے نا، ایسا کہنا پڑے گا آپ کو. مؤنث اس کا آئے گا اول کا اولا، الدرس الاول، ہے نا. الطالب الاول پہلا اسٹوڈنٹ، الطالب الاول. لیکن فیمیل اسٹوڈنٹ ہے تو الطالبہ کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ لیکن اب الطالبۃ الاول نہیں کہیں گے، الطالبۃ الاولا. اول کا مؤنث کیا ہے؟ اولا. یاد رکھنا ہے آپ کو یہ. ثانی کا مؤنث ثانیہ، ثالث کا مؤنث ثالثہ آنورڈس. تا مربوط، تا تانیث لگا دیں گے، تا مربوطہ لگا دیں گے تو مؤنث بن جائے گا، ہے نا. تو اول کا اولا، اول کا مؤنث کیا ہے؟ اولا. اول کا مؤنث اولا، اور ثانی کا مؤنث ثانیہ، ثالث کا ثالثہ، رابع کا رابعہ، ایسے چلے گا. عاشرہ، عاشر سے عاشرہ، ہے نا. تو مؤنث بنانے والا وہی رول ہے جو ہم تا لگاتے ہیں. تو یہ دیکھیے گا اگر کہنا ہوگا، اب یہ دیکھیے گا یہ 11 نمبر کی ایکسرسائز انہوں نے دی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا آپ عدد ترتیبی، اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ عدد ترتیبی کہتے ہیں ہم اس کو. یہ جو اول ثانی ثالث رابع یہ جو ہے یہ ترتیب، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عدد، العدد الترتیبی کہا جاتا ہے اس کو. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ العدد الترتیبی. یہ دیکھیے گا ایکسرسائز نمبر 9 میں لکھا، 11 میں لکھا ہوا ہے یہ العدد الترتیبی کہتے ہیں اس کو ہم. ٹھیک ہے. تو اول ثانی ثالث رابع یہ جو کہہ رہے ہیں ہم، یہ کون سا عدد ہے؟ یہ عدد ترتیبی ہے. یہ ترتیب لگا رہے ہیں نا، آرڈر میں لگا رہے ہیں، پہلا دوسرا تیسرا، اس لیے اس کو ترتیبی کہتے ہیں ہم نا. تو دیکھیں اب یہ دیکھیے گا الیوم کے بعد جو بریکٹ میں کتنا ہے؟ 8. تو اب الیوم الثامن کیا کہیں گے ہم اس کو؟ الیوم الثامن، 8واں دن. الیوم الثامن 8واں دن، ہے نا. اچھا، اور اس کے نیچے جو ہے الطالب کے بعد جو بریکٹ میں وہ کتنا ہے وہ بتائیے؟ الطالب الثالث، الطالب الثالث. فی السنتی، فی السنتی الرابعتی، فی السنتی الرابعتی، فی السنتی الرابعتی. اور الطالبۃ ستہ کے ساتھ میں لگائیے جی. الطالبۃ ابراہیم صاحب، الطالبۃ السادسۃ، الطالبۃ السادسۃ. ہاں، چھٹا کو کیا کہیں گے ہم؟ سادس. اور مؤنث ہے تو سادسہ، مذکر ہے تو سادس، مذکر ہے تو سادس، مذکر ہے تو، اور مؤنث ہے تو سادسہ، سادس سادسہ. یاد رہے گا. دیکھیے گا کاؤنٹ کیجیے گا، اول ثانی ثالث بول کر دیکھیے آپ. دھیرے دھیرے. اول، ثانی، نہیں وہ بعد میں چھوڑو، بس صرف مذکر بولیے تاکہ یاد ہو جائے ہمیں. مؤنث کا تو فارمولا آپ کو پتہ ہے، وہ تا مربوطہ لگانے سے آ جائے گا وہ. ثالث، ہاں 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 ہاں. تو ہم کیا کہیں گے ہم؟ الیوم الاول. ابراہیم صاحب، الیوم الاول، اس کے بعد الیوم الثانی، اس کے بعد الیوم الثالث. اب بولیے آن ورڈس. الیوم الرابع بول کے دیکھیں. ہاں ہاں ہاں. الیوم السادس کے بعد کیا کیا کہیں گے ہم؟ الیوم السابع. اس کے بعد ثامن. اس کے بعد کیا کہیں گے ہم؟ ہاں، الیوم العاشر. الیوم العاشر. اور مؤنث لگانے کے لیے جو ہے نا آسان ہے کہ ہم تا مربوطہ لگا دیں گے ہم اس کے بعد. تو جو ہے نا ستہ سے سادس کہیں گے ہم، اس کو یاد رکھنا ہے. الدرس، اب یہ دیکھیے گا الدرس، الدرس. نیکسٹ پیج پر کیا ہے؟ الدرس. ابراہیم صاحب نیچے جو دیکھیے گا نیکسٹ پیج پر کیا ہے؟ الدرس العاشر. اور الصفحۃ الصفحۃ التاسعہ.
अस्सफ़हतु तासिआ और अलजुज़उल الجزء الأول अलअव्वल अलजुज़उल أول अव्वल अलबैत البيت السابع अलबैतुस्साबिअ السابع अलगुरफ़तु الخامسة الخامسة الغرفة الخامسة الغرفة الخامسة الجزء الجزء الثاني الثاني الجزء الثاني الثاني الجزء ثاني الثاني नंबर 12 की एक्सरसाइज ये देखिए, ये सिंपल है, ये इंटरेक्शन के लिए दिया हुआ है, ये छोड़ देते हैं. नंबर बस पूछना है तो पता. अलैसा कदालिक हमने पढ़ा हुआ है, किस माने में पढ़ा है? अलैसा कदालिक, अलैसा कदालिक इज़न्ट इट के माने में, ऐसा ही है ना, है ना. तो ये याद रखना है आपको. और अय्युहुमा है ना, अय्यु का मतलब कौन सा, अय्युहुमा उन दोनों में से कौन सा, है ना. अच्छा, इसमें अल कलिमातुल जदीदा, ताकि हम नया लेसन पढ़ लें, थोड़ा सा एक्सरसाइज भले बाद में कर ले, लेसन खत्म नया पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, है ना. अल कलिमातुल जदीदा, इसके अंदर जो अल्फाज है, महजउन एक लफ्ज़ पढ़ा हमने, या इब्राहिम साहब एक लफ्ज़ महजउन पढ़ा है, किस माना में पढ़ा हुआ याद है आपको? हॉस्टल के माना में पढ़ा हुआ, उसकी जमा महाज, महजा की जमा याद रखिएगा अल्फाज को, क्योंकि ये बाद में आने वाले हैं ये सारे अल्फाज. कौकबुन एक लफ्ज़ पढ़ा है हमने, किस माना में पढ़ा है? सितारा, उसकी जमा कवाकिब, कौकब की जमा. ये सूरह हज़रत इब्राहीम का, जो हज़रत इब्राहीम ने अपने कौम से हुज्जत की थी ना, फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन फलम्मा रअ अल-कौकबा, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल. हज़रत इब्राहीम ने चाँद देखा तो कहा कि हाज़ा रब्बी, सूरज देखा तो कहा कि हाज़ा रब्बी, सितारा देखा तो कहा कि हाज़ा रब्बी, है ना. वहाँ पर भी लफ्ज़ कौकब इस्तेमाल हुआ है. इस्लाम ने जब ख्वाब देखा तो उन्होंने भी कौकब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है. इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन, वहाँ पर भी इस्तेमाल हुआ है. तो कौकब का मतलब सितारा. और एक लफ्ज़ पढ़ा है वासिउन, किस माना में पढ़ा हुआ है? वासे किस माना में पढ़ा हुआ है? कुशादा, कुशादा, वास्ट. फरीक़ुन एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, फरीक़ का मतलब फरीक़, ग्रुप, जमात. फरीक़ का मतलब जमात, ग्रुप के माना में इस्तेमाल होता है. ये शकीक एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, किस माना में? सगा भाई. शकीक का मतलब क्या हो रहा है? सगा भाई, रियल ब्रदर को कहते हैं शकीक. उसकी जमा अशिक्का, शकीक की जमा अशिक्का, सगा भाई को कहते हैं अरबी में. समनुन किस माना पढ़ा है हमने? कीमत, प्राइस, है ना, प्राइस. आलमुन, आलमुन, आलम का मतलब दुनिया, वर्ल्ड. आलम का मतलब दुनिया, पूरा यूनिवर्स नहीं होता. हाँ, आलम का मतलब यूनिवर्स, दुनिया. दुनिया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. दिस वर्ड कहेंगे अल आलम, है ना. शहीर किस माना में पढ़ा हुआ है? मशहूर के माना में, ठीक है. और शहर अभी पढ़ा हुआ है हमने, किस माना पढ़ा हुआ है? शहर जी, महीना, उसकी जमा शुहूर और अशहूर. शहर की जमा शुहूर, महीना मतलब है. हाँ, मंथ के लिए शहर की जमा शुहूर, है ना, मंथ्स. लाइबुन किस माना पढ़ा हुआ है हमने? प्लेयर, खिलाड़ी के माना में, उसकी जमा लाइबून. फिल्म मनाम का मतलब ख्वाब में, फिल्म मनामे का मतलब क्या होगा? ख्वाब में. अल अजहर, ये अल अजहर जो है ना, वो नाम है शहर का, जामे तो अजहर उसी से है ना. तो अदरसुर राबे पढ़ लिया जाए कि कुछ एक्सरसाइज पूछूं आपसे, या सबक पढ़ना है? कुछ चीज़ें पूछूं आपसे या नया सबक पढ़ेंगे? अच्छा, ये बताइए मुझे कि भी दरवाज़ा बंद है तो क्या कहेंगे हम, इब्राहिम साहब? अलबाबू. और दरवाज़ा बंद नहीं है तो कैसे कहेंगे हम? अलबाबु लैसा बिमुग़लक़िन, है ना वली साहब. अलबाबु मुग़लक़ुन, अगर इन्ना के साथ पढ़ेंगे तो कैसे कहेंगे हम? इन्नल बाबा मुग़लक़ुन. ये देखिएगा, इन्ना के साथ में भी बिल्कुल सही है. पानी ठंडा है वली साहब तो कैसे कहेंगे आप? और इन्ना के साथ में क्या कहेंगे हम? इन्नल माअ बारिदुन. और पानी ठंडा नहीं है तो कैसे कहेंगे आप? हाँ, या लैसल अलमाउ लैसा बिबारिदिन, अलमाउ लैसा बिबारिदिन. हिशाम बीमार है तो कैसे कहेंगे हम? और इन्ना के साथ जी अलिफ लाम नहीं लगाएंगे. हिशामन. अगर अलिफ लाम है तो इन्नल मुदर्रिसा. अगर अलिफ लाम है तो, और अगर अलिफ लाम नहीं है तो इन्ना मुदर्रिसन. अलिफ लाम नहीं है तो क्या करेंगे? अन पढ़ेंगे. तो
हिशामुन, इन्ना हिशामन, इन्ना हिशामन ही कह सकते हैं आप। इन्ना हिशामन, अलिफ लाम वो जो है ना, इन्ना हिशामा वो सही नहीं है, वो एक बहुत सारे कुछ अल्फाज के साथ चलेगा वैसा, जो कि एक्सेप्शन बाद में आएगा वो। अच्छा तो अच्छा आप कहेंगे कि हिशाम बीमार नहीं है तो क्या कहेंगे आप? इन्ना को हटा दीजिए, बगैर इन्ना के बोलिए कि ये हिशाम बीमार नहीं है, बगैर इन्ना के बोलिए हिशामुन लैसा बिमरीदिन। मेरे अब्बू सोए हुए तो कैसे कहेंगे हम? मेरे अब्बू सोए हुए हैं। अभी फी नामी, अभी फी नौम, अभी ना इमुन, अभी ना इमुन, मेरे अब्बू सोए तो क्या कहेंगे हम? अभी ना इमुन, ना इमुन का मतलब सोया हुआ। मैं सोया हूं तो कैसे कहेंगे हम? अना ना इमुन। मैं सोया हूं तो क्या कहेंगे आप? हाँ अच्छा तो मेरे अब्बू सोए हुए तो क्या कहेंगे हम? अभी ना इमुन, और मेरे अब्बू सोए हुए नहीं है तो कैसे कहेंगे आप? अभी लैसा बिना इमुन, अभी लैसा बे ना इमिन, अभी लैसा बे ना इमिन, अभी लैसा बे ना इमिन, है ना। सबक मुश्किल है तो कैसे कहेंगे इब्राहिम साहब? मुश्किल के लिए क्या लफ्ज है वली साहब? मुश्किल साब, मुश्किल के लिए क्या लफ्ज है? तो सबक मुश्किल है तो क्या कहेंगे? और सबक मुश्किल नहीं है तो क्या कहेंगे हम? हाँ, और इन्ना के साथ कैसे कहेंगे सबक मुश्किल है? सबक मुश्किल है इन्ना के साथ बोलिए। इन साबुन, हाँ, इन्ना दरसा, इन्ना दरसा साबुन, इन्ना दरसा, इन्ना दर्शन भी कह सकते हैं। नहीं, बगैर बिला वजह के अलिफ लाम नहीं हटाएंगे, अलिफ लाम लगा कर ही पढ़ेंगे वहाँ पर, बिला वजह अलिफ लाम नहीं हटाएंगे। कोई रीज़न होगा तो हटाएंगे वहाँ पर कभी भी, है ना, तो वरना अलिफ लाम के साथ पढ़िए उसको, है ना। अच्छा मस्जिद करीब है तो कैसे कहेंगे हम? अल मस्जिदो, और इन्ना लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? इन्ना। अब यहाँ पर अलिफ लाम बिला वजह नहीं हटाएंगे, अल मस्जिदो करीबन है कि नहीं वहाँ पहले, तो उसका अलिफ लाम नहीं हटाएंगे, उसका अलिफ लाम रहने देंगे उसको वैसी बाकी, है ना। अल मस्जिदो करीबन कह रहे हैं हम, इन्ना लगाएंगे तो उसका अलिफ लाम नहीं हटाने की जरूरत है, आप वैसी पढ़िए, सिर्फ इन्ना लगाइए उसमें। तो क्या कहेंगे? इन्नल मस्जिदा, और मस्जिद करीब नहीं है तो कैसे कहेंगे हम? अल मस्जिदो लैसा बे करीबिन, अल मस्जिदो लैसा बे। गाड़ी खूबसूरत है तो कैसे कहेंगे इब्राहिम साहब जी? अस्सय्यारतु कहेंगे ना, अलिफ लाम के साथ पढ़ेंगे हम। क्या कहेंगे हम? अस्सय्यारतु जमीलतुन। इन्ना के साथ कैसे बोलेंगे आप जी? फिर से बोलिए। गाड़ी खूबसूरत है, गाड़ी खूबसूरत है, इन्ना के साथ बोलिए। हाँ, इन्ना सय्यारता, इन्ना का इस्म मंसूब और इन्ना के खबर मरफू, है ना, वही रोल है ना। इन्ना सय्यारता जमीलतुन, इस्म मंसूब और खबर मरफू, वही है। अच्छा गाड़ी खूबसूरत नहीं है तो कैसे कहेंगे इब्राहिम साहब? इन्होंने सही कहा है इब्राहिम साहब ने, वली साहब गाड़ी खूबसूरत नहीं है। दोबारा कहिए आप, वली साहब को बोलकर दिखाइए आपने क्या कहा। आप गौर कीजिएगा ये इब्राहिम साहब क्या बोल रहे हैं और उसमें कोई गलती है वो बताइएगा। आप दोबारा बोलकर देखिए कि गाड़ी खूबसूरत नहीं है। गौर से सुनिएगा आप, ये क्या कह रहे, तो इन्होंने कोई गलती की है इसमें? क्या गलती की है इन्होंने? क्या गलती की है वो बताइएगा मुझे। लैसत कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम? लैसत बेजमीलतिन, अस्सय्यारतु लैसत बेजमीलतिन। क्या कहेंगे हम? अस्सय्यारतु लैसत बेजमीलतिन। लफ्ज अस्सय्यारा चूंकि मुअन्नस है तो हम कहेंगे लैसत। अगर लफ्ज मुज़क्कर होता तो लैसा, लफ्ज मुज़क्कर होता तो क्या कहते हैं हम? लैसा। घर जो है ना खूबसूरत नहीं तो कहेंगे अलबैतु लैसा बेजमीलिन, अलबैतु लैसा बेजमीलिन। लेकिन अस्सय्यारा है तो कहेंगे अस्सय्यारतु लैसत, अस्सय्यारतु तो मुअन्नस है तो लैसत कहेंगे हम। मैं मालदार हूँ तो कैसे कहेंगे वली साहब? अना गनी हूँ। मैं मालदार नहीं हूँ तो कैसे कहेंगे वली साहब? इब्राहिम साहब आप कहिए वली साहब, मैं मालदार नहीं हूँ। क्या कहेंगे हम? बोल के देखिए आप।
अना लस तो कहेंगे हम यहाँ पर हम अपने बारे में क्या कहेंगे लैसा को कैसे इस्तेमाल करेंगे हम अपने बारे में बात करेंगे तो अना लस्तु लस तो कहेंगे हम क्या कहेंगे वली साहब तो हम कहेंगे अना लस्तो बेगनीन अना जब हम गलती करेंगे तब ज्यादा समझ में आता है हमें है ना है कि नहीं गलती अगर नहीं होगी तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमने सही पढ़ा या गलत जब गलती होगी तो हमें समझ में आएगा खट से स्ट्राइक होगी बात अरे ये ऐसा होता है तो फिर जो है ना समझ तो जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे लस तो लैसा को इस्तेमाल करेंगे हम अपने बारे में लस्तो क्या कहेंगे हम अना लस्तो ठीक है अंत फकीरुन इब्राहिम साहब अंत फकीरुन इसका जो है ना नेगेटिव बनाइए अंत फकीरुन इसका नेगेटिव जुमला बनाइए लस्ता बिफकीर वली साहब सही कहा इन्होंने अंत फकीरुन का नेगेटिव क्या बनेगा अंत लस्त बिफकीरिन अंत लस्त बिफकीरिन फकीर नहीं हाँ अंत लस्त बिफकीरिन अच्छा ही हम अच्छा कहेंगे कि भी अच्छा कहेंगे कि अलमुदर्रिसून फिल फुसूल अलमुदर्रिसून फिल फुसूल वली साहब इसका नेगेटिव कैसे बनना चाहिए अलमुदर्रिसून फिल फुसूल المدرسون ليسوا بالفصول वेरी गुड अलमुदर्रिसून लैसू फिल फुसूल देखिए लैसा की जमा क्या बनेगी लैसू अंत ज़कियतुन इब्राहिम साहब अंत ज़कियतुन इसका नेगेटिव बना दिए लस्ते ज़कियतुन आप बताइए ज़कियतिन दोबारा बोलिए वली साहब आप सुनिए इनकी गलती कुछ हो रही है इसमें तो पकड़िए उसको ज़कियतिन आप बोलिए क्या गलती की है हाँ कुछ गलती है इसमें महसूस हो रहा है इन्होंने क्या कहा है वो बताइए पहले मुझे अंत लस्त ज़कियतिन वेरी गुड आप बताइए इसमें क्या गलती हो रही है इनसे अंति लस्ती बिदकियतिन ब छूट रहा है आपका आपने कहा कि अंत लस्ते ज़कियतिन आपने कहा है लस्ते ज़कियतिन ब छूट रहा है वहां अंत लस्ते बेज़कियतिन क्या कहेंगे हम लैसा के साथ में हमेशा बा इस्तेमाल करना है याद रखिएगा लैसा के साथ में हमेशा लैसा की कोई भी शक्ल बदले लेकिन बा तो रहेगा वहां पर क्या कहेंगे हम लैसा के साथ में हमेशा बा लैसा की शक्लें भले ही बदले लेकिन बा मौजूद रहेगा लस्तो बेगनीयिन लस्ते बेज़कियतिन तो हम क्या कहेंगे लस्ते बे अंत लस्ते बे हाँ बा को नहीं बोलना है लैसा के साथ में अंतुम किबारुन अंतुम वली साहब अंतुम किबारुन का नेगेटिव क्या बनना चाहिए अंतुम लस्तुम बिकिबार अंतुम लस्तुम बेकिबारिन वेरी गुड अंतुम लस्तुम बेकिबारिन अत्तालिबातु अब वली इब्राहिम साहब अत्तालिबातु फिल मक्तबती इसका नेगेटिव बनाकर देखिएगा अत्तालिबातु लस्ना क्या अत्तालिबातु फिल मक्तबती मक्तबा का लाइब्रेरी अत्तालिबातु फिल मक्तबती अत्तालिबातु लस्ना फिल मक्तबती वेरी गुड अत्तालिबातु लसना फिल मक्तबती अत्तालिबातु लसना फिल मक्तबती अच्छा वली साहब अंतुन तालिबातुन जुदुदुन अंतुन तालिबातुन जुदुदुन तो इसका मनफी कैसे बनना चाहिए नेगेटिव अंतुन्ना लस्तुन्ना बिजुदुद्दीन बेतालिबातिन जुदुदिन अंतुन्ना तालिबातुन जुदुदुन अंतुन्ना तालिबातुन जुदुदुन अंतुन्ना लस्तुन्ना बेतालिबातिन हाँ बेजुदुदिन बितालिबातिन हाँ जी अंतुन्ना लस्तुन्ना बेतालिबातिन जुदुदिन ठीक है ना मैं सवाल करता हूँ आप लैसा के जरिए से जवाब दीजिएगा अमुहंदिसुन अबुक लैसा के जरिए से आप कहिए कि नहीं आप अपने बारे में मैंने आप जो सवाल किया है कि अमुहंदिसुन अबुक आप कहिए कि नहीं तो आप पूरा जवाब दीजिए लैसा के जरिए ला हुवा लैसा बिमुहंदिस या अबी लैसा बिमुहंदिस कैसे जवाब देंगे हम अमुहंदिसुन अबू का तो हम जवाब क्या देंगे हुवा लैसा बेमुहंदिस या ला अबी लैसा बेमुहंदिस तो या तो आप अभी कहिए या अभी की जगह पर हुआ कहिए है कि नहीं है तो सीधा हुआ यूज करना जरूरी नहीं है ना हाँ कोई जरूरी नहीं है लेकिन आप इस्तेमाल करना चाहिए स्ट्रक्चर में जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए हुवा लैसा बे
جب ہم سوال کر رہے ہیں تو آپ کو جواب میں بولنا پڑے گا کہ ہوا لیسا بے، جواب میں آپ کو جو ہے نا کہنا پڑے گا کہ لا ہوا لیسا بے محدث، محدث ابوک لا ہوا لیسا بے، ہاں وہاں پر جواب میں آپ کو بولنا پڑے گا، یا تو ابھی کہنا پڑے گا یا ہوا کہنا پڑے گا آپ کو. اب آپ جو ہے نا امدرسۃ امک یا ولید امدرسۃ امک، امدرسۃ امک، اس کا جواب کیسے دیں گے ہم؟ لا هي ليست بالمدرسة. ہاں یا تو امی کہیں گے یا تو لیست کہیں گے. کیا کہیں گے ہم؟ تو ہم کہیں گے لا امی لیست یا لا ہی لیست، لا هي ليست ہے نا، بے مدرسہ، یا تو کہیں گے لا امی لیست بے مدرسہ، لا امی لیست بے مدرسہ، یا پھر لا ہی لیست بمدرسة. بے مدرسہ. اطلاب اخوتک، اطلاب اخوتک، اخوتن کا مطلب بھائی ہے نا، اطلاب اخوتک، کہ آپ کے بھائی اسٹوڈنٹس ہیں، اطلاب اخوتک. تو کیسے کہیں گے ہم؟ اب ضمیر استعمال، اس کو ہم جو کہہ رہے ہیں نا ہوا یا ہیا، ضمیر کہہ رہے ہیں ہم. کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو؟ ضمیر کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہوا یا ہیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ لا ہوا لیس بے، لا ہیا لیست بے، ہوا اور ہیا جو کہے نا انا اور نحنو، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ضمائر کہتے ہیں ان کو. تو ضمائر کا استعمال کیجئے گا، ضمائر کا استعمال کیجئے. تو آپ کہیے اطلاب اخوتک، کہ آپ کے بھائی جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہے، تو ضمیر کا استعمال کر کے جواب دیجئے گا لیسا کے ساتھ میں. هم ليسوا ویری گڈ، بالطلاب. بے طلاب، ویری گڈ. لا لا ہم لیسو بے طلاب، ہم لیسو بے طلاب، ہم لیسو بے طلاب. اممرضات اخواتک، اخوات بہنیں، اخوات بہنیں. ممرضہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے نا؟ نرس. اممرضات اخواتک، تو ضمیر کے استعمال کیجئے گا، اس میں ضمیر کے ساتھ جواب دیجئے، لیسا لگائیے. اممرضات اخواتک، لا ہاں ضمیر کے ساتھ کہیے، ضمیر کے ساتھ میں بولیے لیسا کو. مشکل نہیں، سوچ کر بولیے، سوچ کر بولنا پڑے گا، کوئی مسئلہ. ہاں اممرضات اخواتک، تو ضمیر استعمال کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سوچ کر بولیے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ کاؤنٹ کیجئے اس میں سے کون سی مناسب ضمیر ہے، وہ بول آپ چیک کیجئے. یہ بھی ایک ہن، ویری گڈ. کم از کم ہم پہنچتے رہے وہاں تک، کم از کم ہمیں ضمیر، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم از کم ہمیں ضمیریں تو یاد ہو گئی ہے، کم از کم ہمیں ضمیریں تو یاد ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمیں ضمائر یاد نہیں تھے، کم از کم ہمیں ضمائر یاد ہے. انا نحن انت انتما انتم انت انتما انتن ہوا ہما ہم ہی ہما ہن، یہ ساری ضمیریں یاد تو ہو گئی ہمیں، ہے نا. لیکن ایک ٹائم آ گیا کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا، جیسے کہ ابھی ہم سوچنا پڑ رہا ہے، ایک ٹائم آ گیا کہ انشاءاللہ فوراً بولیں گے. اچھا آپ بول کے دیکھیے گا، اممرضات اخواتک، تو اب کہیے گا لا ہن لسنا، ویری گڈ. لا ہن لسنا، لا ہن لسنا بے ممرضات، لا ہن لسنا بے. دیکھیے لیسا کی ساری شکلیں جو ہے نا استعمال ہو رہی ماشاءاللہ آپ کی. ہاں ولی صاحب، امدرس انت، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کم از کم جو ہے نا ہم اس میں سے چوز تو کر پا رہے ہیں نا، ضمائر میں سے ہم سلیکٹ تو کر پا رہے ہیں کریکٹ ضمیر کو، وہ بھی ایک جاب ہے، وہ بھی ایک ٹاسک ہے. امدرس انت، امدرس انت. لا انا لست بمدرس. ویری گڈ. لا انا لست بے مدرس، انا کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں ہم یہاں پر. لا انا لست بے مدرس، لا انا لست بے مدرس. اجدد انتم، اجدد انتم، کیا آپ سب لوگ نئے ہیں؟ تو اس کا جواب کیسے بننا چاہیے؟ دونوں سوچئے. اجدد انتم، تو اس کا جواب کیسے بننا چاہیے؟ کیا آپ سب لوگ نئے ہیں؟ لا لسنا بجدد. لا لسنا، ویری گڈ، ممتاز. لا لسنا بجدد، لا لسنا بجدد، لا لسنا بے اجدیدۃ. ابراہیم صاحب، اجدیدۃ سیارتک، اجدیدۃ سیارتک. ضمیر کے ساتھ کہیے، لسنا لیسا کی ضمیر، ہاں سیارتی، ضمیر استعمال کیجئے، یا تو ضمیر استعمال کیجئے. اجدیدۃ سیارتک، لا سیارتی، سیارتی لست بجدیدک، لستو نہیں کہیں گے ہم، دوبارہ سوچئے گا. اجدیدۃ سیارتک، اور سوچئے ایک مرتبہ. اجدیدۃ سیارتک، لستو کا مطلب میں، لستو کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ میں. تو یہاں پر میں نہیں کہہ رہے، میری گاڑی کہہ رہے ہم تو، ہے نا. اجدیدۃ سیارتک، سوچ کر بولیے، کوئی پرابلم نہیں ہے.
लैसत, वेरी गुड। हाँ तो आप पूरा जुमला बोलिए। अजदीदतुन सय्यारतुका, सय्यारती लैसत बिजदीदतिन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगर सय्यारा को हटा के ज़मीर लगाएंगे तो क्या कहेंगे हम वलीद साहब? अगर सय्यारा लफ्ज़ को हटा के ज़मीर इस्तेमाल करेंगे तो हिया, तो क्या कहेंगे? ला हिया लैसत बिजदीदतिन, ला हिया लैसत बिजदीदतिन अजदीदतुन सय्यारतुका। क्या जवाब बना उसका? ला हिया लैसत बिजदीदतिन, ला लैसत बिजदीदतिन। तो ये समझ में आ गई लैसा का इस्तेमाल। लैसा का इस्तेमाल जो है ना अभी जहन में आ जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है लैसा ना। नेगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए यही होता है इस्तेमाल ना लैसा, इसके लिए जो है ना ज़रूरी है वो, है ना, लैसा का इस्तेमाल। अच्छा इसको पढ़ लेते हैं दरसुराब में, या क्या किया जाए आप लोग जैसे कहेंगे? सिर्फ छोटा सा सबक है, बस एक ही है ना, बाकी ये तमारीन अगले हफ्ते करेंगे इसकी इंशाल्लाह, है ना। आप रीड कीजिएगा, जो भी रीड करे कोई एक रीड कर ले आप। यूसुफु जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी इब्राहीम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबन बिका या खाली, कैफ हालुका, लअल्लका बिखैर, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐन अबूका या इब्राहीम? इब्राहीम ज़हब इला सूक। यूसुफ व ऐन उम्मुका? इब्राहीम ذهبت إلى خالتي زينب. يوسف وأين إخوتك؟ إبراهيم ذهبوا إلى الجامعة. يوسف ذهبوا إلى الجامعة، ऐसा पढ़िए, एराब जाहिर कीजिए। ذهبوا إلى الجامعة. يوسف وأين أخواتك؟ أين أخواتك؟ إبراهيم ذهبنا إلى المدرسة. यूसुफ नहीं, यूसुफो पढ़िए, यूसुफ पढ़िए, है ना, या तो यूसुफो कहिए या यूसुफ कहिए, सिर्फ यूसुफा नहीं होगा, मरफू पढ़िए उसको, यूसुफो जी। अमा ज़हबता इलल मदरसतिल यौम? जी इब्राहीम आप पढ़िएगा वली साहब। इब्राहीम बला ज़हबतु व रजअतु बअदल हिस्सतिल ऊला, देखिए अव्वल का ऊला। अच्छा उसके बाद यूसुफ लिमादा रजअता? इब्राहीम रजअतु लिअन्ननी मरीदुन। यूसुफ ला बास इंशाअल्लाह। हाँ अज़हबत इला तबीबी? हाँ इब्राहीम नअम ज़हबतु। तो ये देखिए लेसन ख़त्म हो गया, इसको समझ लेते हैं इंशाल्लाह। इसकी तमारीन जो है ना अगले हफ्ते करेंगे इंशाल्लाह। मैं पढ़ता हूँ और वली साहब आप दोनों मिलकर मुझे समझाइए। यूसुफ ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्राहीम ने कहा कि वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबम बिका या खाली। देखिएगा हमने इससे पहले भी ये बताया था, अहलन व सहलन व मरहबम बिका, ये जो है ना पूरा एक के साथ इस्तेमाल होता है ग्रीटिंग्स के लिए, मोस्ट वेलकम। तो अहलन व सहलन व मरहबम बिका या खाली, खाल का मतलब क्या होता है? मामू जान, चचा के लिए क्या कहते हैं हम? अम्मुन जी। तो अहलन व सहलन व मरहबम बिका या खाली, ए मामू जान। तो मामू से बात कर रहे हैं, मामू और भांजी की बात हो रही है। तो मामू जान वे मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम मामू जान। कैफ हालुका, आप कैसे हैं? लअल्लका बिखैरिन, लअल्लका बिखैरिन का मतलब क्या होगा? लअल्लका इसमें दोनों बताया था, जी? एक फियर और एक होप दोनों होते हैं जी। तो लअल्लका बिखैरिन का मतलब क्या होगा फिर? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाँ, लअल्ला का मतलब क्या होगा इब्राहिम साहब? उम्मीद है आप खैरियत। उम्मीद है कि लअल्ला के अंदर दो चीजें बताई थी हमने, फियर और होप। तो यहाँ पर होप होगा कि उम्मीद है कि आप खैरियत से हैं। लअल्लका बिखैरिन, उम्मीद है कि आप, आई होप यू आर फाइन, है ना। यूसुफ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मामू जान ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। ऐना अबूका या इब्राहीम? इब्राहीम तुम्हारे अब्बू किधर है? ऐना अबूका या इब्राहीम, क्या पूछा यूसुफ ने? ऐना अबूका, ऐ इब्राहीम तुम्हारे अब्बू किधर है? तो इब्राहीम ने क्या कहा बताइए अब? ज़हब इला सूक। इब्राहीम ने क्या कहा बताइए? कौन गया? ज़हब इला सूक, वो गए। अच्छा इसमें ये कैसे? ऐना अबू का या इब्राहिम, है इब्राहिम तुम्हारे अब्बू किधर है? तो उसने कहा, इब्राहिम ने ज़हबा इला सूक, वो मार्केट गए। ज़हबा इला सूक का मतलब क्या होगा? वो मार्केट गए। हाँ, ज़हबा का मतलब वो गए, मर्द गया तो ज़हबा। इसमें ये कैसे लगे? ज़हबहू नहीं, हु का कोई मसला नहीं। हु का मतलब काके की, किताबु हु का मतलब क्या होता है? उसके किताब। हाँ उसकी, काके की का माना पाया जाता है। उसके गए नहीं, वो गया ना, वो गया, उसका गया नहीं, वो गया। तो किताबुहु कलमुहु, है ना, बैतुहु, हु जो है ना काके की गया। अच्छा, ज़हबा का मतलब गया, मर्द गया तो ज़हबा। तो इब्राहिम ने, यूसुफ ने पूछा कि ऐना अबू का या इब्राहिम, मैं इब्राहिम तुम्हारा अब्बू किधर है? तो इब्राहिम ने जवाब दिया ज़हबा,
यानी हुआ ज़हब इला सूक, ज़हब यानी हुआ ज़हब, ये मतलब ना, हुआ ज़हब इला सूक, ये मतलब है। ब्रैकेट में जो है ना छुपा हुआ है हुआ, ठीक है। तो वो कहाँ गए हैं? मार्केट गए हैं। ज़हब इला फॉर्म उसी तरीके से होगी जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं लईसा, लईसा का, लईसा तो ये अभी आएगा वो, अभी सारा याद हो जाएगा इंशाल्लाह, याद हो जाएगा वो। तो ज़हब इला सूक, मर्द गया तो हुआ ज़हब, है ना। इसका मतलब क्या है? हुआ ज़हब, ज़हब इला सूक। यूसुफ ने पूछ लिया कि वो आइना उम्मुक, और आपकी अम्मी जान किधर है? वो आइना उम्मुक, और आपकी अम्मी। तो इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? ज़हबत। अब ये देखिएगा, मर्द गया तो ज़हबा, औरत गई तो ज़हबत, है ना। तो ज़हबा ज़हबत, ज़हबत यानी हिया ज़हबत, ज़हबत यानी हाँ, ये मतलब है। तो इब्राहिम ने कहा कि ऊपर ज़हबा का मतलब हुआ, ज़हबा हुआ जो है ना उसका फाइल है, और ज़हबत के अंदर हिया छुपा हुआ है ना। ज़मीर, जो ज़मीर हिया की है वो छुपी हुई वहाँ पर हुआ की ज़मीर छुपी हुई है, ठीक है। तो ज़हबत इला खालती ज़ैनब, ज़हबत इला खालती ज़ैनब, इब्राहिम ने कहा कि वो मेरी खाला ज़ैनब के पास गई हैं। ज़हबत यानी ऐना उम्मुक, आपकी अम्मी किधर है? तो इब्राहिम ने क्या जवाब दिया? ज़हबत, वो गई हैं, ज़हबत वो गई हैं, हिया ज़हबत, कहाँ गई हैं? इला खालती ज़ैनब, मेरी खाला ज़ैनब के पास। कहाँ गई हैं? मेरी खाला ज़ैनब, खालतुन का मतलब खाला, इला खालती ज़ैनब, मेरी ज़ैनब खाला मेरी खाला ज़ैनब के पास गई हैं वो, है ना, यानी अपनी बहन के पास गई है। यूसुफ ने पूछा वो आइना इखवतु का, और आपके भाई लोग किधर है? भाई, अखुन की जमा इखवतुन, अखुन की जमा पढ़ा हुआ है हमारा ये ना बुक 1 में, अखुन की जमा इखवतुन। वो आइना इखवतु का, इखवतु यूसुफ कहते कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, है ना। इन्नी रायतु फिल मनाम अहद, इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर। हज़रत यूसुफ ने अपने अब्बू से क्या कहा? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, बताइएगा। इन्नी रायतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मर, बेशक मैंने नहीं व रायतुहुम ली साजिदीन। तो इब्राहिम, हज़रत याकूब ने अपने बेटे को क्या कहा था? या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका फ़यकीदू लका कैदन। तो इख़वतुन का मतलब भाई, इख़वतुन का मतलब वही लफ्ज़ है वहाँ पर, ला तक़्सुस रुअयाका अला, ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका। तो इख़वतुन का मतलब क्या हो रहा है? इख़वतुन का मतलब भाई, जमा अखुन की जमा इख़वतुन, सूरह यूसुफ में, है ना। क़ाल या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका, वही लफ्ज़ है इख़वतुन। इख़वतुन का मतलब भाई। तो कहा कि यूसुफ ने कहा कि वो आइना इख़वतु का, और तुम्हारे भाई किधर हैं? तो इब्राहिम ने जवाब दिया ज़हबू इलल जामिआ। देखिएगा बहुत सारे गए तो ज़हबू, वाव, वाव जमा का है यहाँ पर। अब वाव क्या है? ये जमा का है। ज़हबा वाहिद और जमा है तो ज़हबू, वाव जमा का। तो ज़हबू इलल जामिआ, वो सब कहाँ गए हैं? जामिआ गए हैं। देखिएगा, एक मर्द गया तो ज़हबा, एक औरत गई तो ज़हबत, बहुत सारे मर्द गए तो ज़हबू, वाव जो है ना वो जमा का है यहाँ पर। ज़हबू के अंदर वाव क्या है? ये वो जमा का है। ज़हबू इलल जामिआ, और औरतें गई हैं तो अब आगे आ रहा है। यूसुफ ने पूछा वो आइना अख़वातुक, और आपकी बहनें किधर हैं? वो आइना अख़वातुक, इख़वत, उख्तुन की जमा अख़वात, उख्तुन की जमा। तो क्या पूछा उसने? वो आइना अख़वातुका। देखिएगा कंफ्यूज नहीं होते, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं इख़वतुन और अख़वात में। हाँ, तो इख़वतुन का मतलब भाई, अख़वात का मतलब बहनें। अलिफ आ गया तो बहने, अलिफ आ गया तो बहनें। मुहद्दिसात, तबीबात कहते कि नहीं, हम कहते कि नहीं, तबीबात। मुस्लिमतुन की जमा मुस्लिमात, मोमिनतुन की जमा, तो वो याद रखिए अख़वात। मुस्लिमात, मोमिनात, क़ानितात, आबिदात, सायहात, अख़वात, आद, अलिफ और ता के साथ में बहनें। बगैर अलिफ लाम, बगैर अलिफ के है तो भाई, अलिफ के साथ है तो बहनें। जी जी जी। तो मोमिनात, वो है ना मुस्लिमात। तो वह आइना अख़वात, तो आइना अख़वातुक, और आपकी बहनें किधर है? तो इब्राहिम ने क्या कहा कि ज़हबना इलल मदरसती, ज़हबना इलल। देखिए नून जो है ना ये जमा का है, जमा मुअन्नस का है। ये नूनुन निस्वा कहते हैं इसको, नूनुन निस्वा कहते हैं इसको, पढ़ा है आपने यूनिवर्सिटी में। इसी को नूनुन निस्वा, निस्वा का मतलब औरतें ना, निस्वा का मतलब औरतें। ये नून काय का है? ये फीमेल वाला नून है। ये जमा मुअन्नस का है ये नून, नूनुन निस्वा। ज़हबना इलल मदरसती, ये जमा मुअन्नस वाला नून है। ये ज़हबना इलल मदरसती। तो इब्राहिम साहब, एक मर्द गया तो ज़हबा, और एक औरत गई तो ज़हबत, एक औरत गई तो,
बहुत सारे मर्द गए तो ذهبوا, बहुत सारी औरतें गई तो ذهبنا, क्या कहेंगे हम, ذهبنا. अच्छा, यूसुफ ने पूछा अमा ذهبت إلى المدرسة اليوم, अब तुम गए तो ذهبت, तुम गए तो ता, ذهبت अंत. अमा क्या मतलब? अमा का मतलब क्या तुम नहीं गए, अमा माँ का मतलब नहीं ना, और जो सवाल का क्या सवाल का ना, और माँ जो है नहीं का. अमा ذهبت, क्या तुम नहीं गए, ठीक है. अमा ذهبت إلى المدرسة اليوم, क्या तुम आज मदरसा नहीं गए हो. अमा ذهبت إلى المدرسة, अमा सवाल का, माँ नेगेशन का. अमा ذهبت, क्या तुम नहीं गए, إلى المدرسة स्कूल, اليوम आज, क्या तुम आज स्कूल नहीं गए. तो इब्राहिम ने क्या जवाब दिया, बला, हाँ गया था. बला का मतलब ऑफ कोर्स पढ़ा हमने. बला का मतलब हाँ बिल्कुल. ذهبت मैं गया, व रजाअत और वापस आ गया. तो मैं गया तो ذهبت, तुम गए तो ذهبت, तुम गए तो, और मैं गया तो ذهبت, मैं गया तो, और तुम गए तो ذهبت. तो बला ذهبت व रजाअत بعد الحصة الأولى, हाँ गया था, ذهبت मैं गया, व रजाअत और वापस भी आ गया. रजा का मतलब वापस होना, रजा का मतलब क्या होता है, वापस आना. ذهب का मतलब गया, रजा का मतलब वापस आया. बला ذهبت व रजाअत بعد الحصة, हिस्सा कहते हैं पीरियड, بعد الحصة الأولى फर्स्ट पीरियड के बाद गया था, फर्स्ट पीरियड के बाद वापस हो गया भाई. बला ذهبت व रजाअत بعد الحصة الأولى, पहले पीरियड के बाद मैं वापस आ गया. यूसुफ ने कहा लिमादा रजाता, लिमादा का मतलब क्यों, लिमादा रजाता, तुम वापस क्यों आ गए. लिमादा का मतलब क्या होता है, क्यों जी. लिमादा रजाता, तुम वापस क्यों आ गए. इब्राहिम ने जवाब दिया रजाअतु लिअन्ननी मरीदुन, मैं वापस आया. रजाअतु ले अन्ना का मतलब इसलिए के, बिकॉज. ले अन्ना का मतलब बिकॉज. देखिएगा इन्ना के, इन्ना और अन्ना पढ़ा है हमने ना, इन्ना अन्ना एक ही बात है. वो इन्ना पढ़ा है लेकिन ले लगा दिया तो इसलिए के माना जाता है. ले अन्ना है ना, ले इन्ना नहीं बोलेंगे. ले जब आएगा तो अन्ना बोलेंगे. ले अन्ननी है ना, ले अन्ननी मरीदुन, मैं वापस आ गया क्योंकि मैं बीमार हूँ. ले अन्ननी, ले अन्ना का मतलब इसलिए के, ले अन्ना का मतलब इसलिए के है ना. तो ले अन्ननी इसलिए कि मैं बीमार हूँ, तुम बीमार. ले अन्ना का मरीजुन, ले अन्ना हूँ मरीजुन. ले अन्ना का मतलब क्या हो रहा है, बिकॉज. ले अन्ना एक सेपरेट वर्ड है, बस याद रखिएगा. तो ले अन्ना का मतलब बिकॉज. तो ले अन्ननी मरीजुन, क्योंकि मैं बीमार हूँ. यूसुफ ने कहा कि लाबास, कोई बात नहीं भी, लाबास कोई हरज नहीं है ना. मतलब है कि अल्लाह ऐसा कहते हैं हम, लाबास तहूर इंशाअल्लाह है ना. लाबास का मतलब असल में क्या होता है कि आपको कोई तकलीफ ना हो, है ना. अच्छा, अज़हबता इला तबीब, क्या तुम डॉक्टर के पास गए थे. अज़हबता इला तबीब, क्या तुम डॉक्टर के पास गए हो. इब्राहिम ने कहा कि नाम ज़हबतु, हाँ मैं गया था. नाम ज़हबतु, तो ये देखिएगा ज़हबा बुनियादी शक्ल है, ज़हबा है ना. मैं गया तो ज़हबतु, तुम गए तो ज़हबता. मर्द गया तो ज़हबा. हामिद, हामिदुन ज़हबा, हामिद और फातिमा ज़हबत. हामिद, हामिद ज़हबा और फातिमा ज़हबत. और अत्तुल्लाबु, अत्तुल्लाबु, अत्तुल्लाबु ज़हबू, हाँ, और अत्तालिबातु ज़हबना, ज़हबना. अत्तालिबातु ज़हबना, और अना, ज़हबतु, अना ज़हबतु, और अंता ज़हबता. ज़हबता. ये याद रखिएगा सारा. तो जो है ना, ज़हबतु मैं गया, ज़हबता तुम गए. अत्तुल्लाबु ज़हबू, अत्तालिबातु ज़हबना है ना. और अत्तालिबु ज़हबा, अत्तालिबातु ज़हबना है ना. हामिदुन ज़हबा और फातिमतु ज़हबत, ज़हबा ज़हबत. तो देखिएगा पूरा टेबल याद रखना है हमको. ज़हबा, एक मर्द गया तो ज़हबा है ना, और दो मर्द गए तो ज़हबा, अलिफ लगा देते डुअल के लिए. और बहुत सारे मर्द गए तो ज़हबू, वाव जमा का, जमा मुज़क्कर का वाव. ज़हबू, वाव क्या है, जमा मुज़क्कर का है ना. ज़हबा ज़हबा, ज़हबू, ज़हबा ज़हबा, ज़हबू. अच्छा, और ज़हबत, एक औरत गई तो ज़हबत, और दो औरतें गई तो ज़हबता. दो औरतें गई तो ज़हबता. ज़हबत के अंदर अलिफ ऐड कर देंगे डुअल का, तो ज़हबता हो जाएगा. ज़हबत का डुअल क्या बनेगा, ज़हबता. जैसे कि हम कह रहे हैं ज़हबा, उसका डुअल ज़हबा
अलिफ लगाने से डुअल बन रहा, तो ज़हबा का डुअल ज़हबा और ज़हबत का डुअल ज़हबता, ज़हबत का डुअल, और जमा मुअन्नस ज़हबना, जमा मुअन्नस हुन्ना, हुन्ना, हाँ हुआ ज़हबा, दोबारा देखिएगा हुआ ज़हबा, हुआ हुमा ज़हबा, हुम ज़हबू, हुम ज़हबू, हुम थर्ड पर्सन, हम थर्ड पर्सन ही बोल रहे हैं अभी। देखिएगा थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन पे आएंगे हम ना। थर्ड पर्सन के तीन तीन बोली साहब, थर्ड पर्सन के तीन तीन, तीन मेल तीन फीमेल, तीन मेल और तीन, और फिर सेकंड पर्सन के भी तीन मेल और तीन फीमेल। फर्स्ट पर्सन के अंदर सिर्फ दो ही आएंगे, है ना। तो थर्ड पर्सन के तीन और तीन, हुआ ज़हबा, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये याद है हमें, हुआ हुमा हुम हिया हुमा, तो हुआ के साथ में ज़हबा, हुआ के साथ में, हुमा के साथ में ज़हबा, हुमा के साथ में, और हुम के साथ में ज़हबू, हुम के साथ में। अब तीन फीमेल के हिया है ना, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, हिया हुमा हुन्ना, हिया के साथ में ज़हबत, हिया के साथ में ज़हबत, और हुमा के साथ में ज़हबता, ज़हबत का ज़हबता, और हुन्ना के साथ में ज़हबना, हुन्ना ज़हबना, हुन्ना, दोबारा सुनिएगा, ज़हबा ज़हबा ज़हबू, तीन मेल। इब्राहिम साहब गौर कीजिएगा, तीन मेल के ज़हबा ज़हबा ज़हबू, तीन फीमेल ज़हबत ज़हबता ज़हबना, है ना। तीन और तीन याद रखिएगा, बोल कर देखिए खालिद साहब, तीन मेल और तीन फीमेल के सिर्फ बगैर ज़मीरों के बोलिए आप, ज़मीरों को छोड़ दीजिए, अना ना हुआ हुमा हुम हिया हुमा, वो छोड़ दीजिए, सिर्फ सीधा वर्ब की शक्ल वो बोलिए, और इसी पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह हम। मुज़क्कर के लिए, हाँ तीन मुज़क्कर के और तीन मुअन्नस के बोलिए। मुज़क्कर के लिए ज़हबा ज़हबा, वेरी गुड, वेरी गुड। तीन मुअन्नस के बोलिए। ज़हबत ज़हबता ज़हबना, फिर से बोलिए एक मरतबा आप। ज़हबा ज़हबा ज़हबू, वेरी गुड। तीन मुअन्नस के बोलिए। ज़हबता ज़हबना, हाँ आप बोलिए इब्राहिम साहब, तीन मुज़क्कर के और तीन मुअन्नस। वेरी गुड, है ना। तो ये हो गए ये थर्ड पर्सन के, है ना। ज़हबा ज़हबा ज़हबू, तीन फीमेल के, ज़हबत ज़हबता ज़हबना, अंता अंता अंतुमा अंतुम, तीन मेल, अंते अंतुमा अंतुन्ना, तीन फीमेल, तो अंता ज़हबता, अंता, ये बहुत इजी है। अब तो सेकंड वाला तो बहुत इजी है। अंतुमा जैसा वो है वैसा वो है, अंता ज़हबता जैसा ज़मीर है वैसे ही वो भी आएगा, अंता अंतुमा ज़हबतुमा, सेम जैसा, अंतुम वैसे आएगा, अंतुम ज़हबतुम, देखिएगा ज़मीर की तरह आएगा वो, अंती वैसे आएगा, ज़मीर की तरह ही आएगा वो, अंतुमा वैसी ज़मीर की जो आवाज़ निकल रही है वैसी निकलेगी उसकी आवाज़, है ना। अंतुन्ना वैसी आवाज़ निकलेगी उसकी भी, अंतुन्ना ज़हबतुन्ना, ज़मीर की तरह, है ना। तो ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, और अना ज़हबतु अना, और नहनु ज़हबना नहनु ज़हबना नहनु ज़हबना, तो हम अलिफ के साथ ना, नहनु ज़हबना नहनु, तीन जो है ना सेकंड पर्सन के, ज़हबता तीन मेल के सेकंड पर्सन, ज़हबता ज़हबतुमा ज़हबतुम, तीन फीमेल के, ज़हबती ज़हबतुमा ज़हबतुन्ना, और फर्स्ट पर्सन ज़हबतो ज़हबना ज़हबतो ज़हबना ज़हबतु। तो एक मरतबा सुन लीजिए, अगले हफ्ते जो है ना याद करके लाइएगा इनको सारा ऊपर से नीचे तक, और अगले हफ्ते नहीं याद हो तो उसके बाद वाले हफ्ते में याद हो जाएगा इंशाल्लाह, 2 हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह याद हो जाएगा वो। ज़हबा ज़हबा ज़हबू, सांस ले ले, याद करने का तरीका क्या है, ब्रेक कर ले वहाँ पर, तीन मेल तीन फीमेल, थर्ड पर्सन एक लाइन बीच में नीचे डाल दीजिएगा, तीन मेल तीन फीमेल, नीचे एक लाइन ब्रेन में, है ना, अपने जहन में एक लाइन डालिए। फिर उसके बाद जो है ना सेकंड पर्सन में आ गए तीन मेल तीन फीमेल, फिर एक लाइन डाल दीजिए नीचे दिमाग में, फिर फर्स्ट पर्सन के दो याद रखिएगा। तो ऐसे लाइन में जो ना वर्चुअल लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा, तीन मेल तीन फीमेल,
थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन 3 मेल 3 फीमेल, फिर फर्स्ट पर्सन के 2, तो थर्ड पर्सन के 3 मेल और 3 फीमेल, दहबा दहबा दहबू दहबत दहबता दहबना, है ना, दहबा दहबा दहबू 3 मेल 3 फीमेल, दहबत दहबता दहबना। अब ये लाइन एक हमने ड्रॉ कर दी। अब सेकंड पर्सन पे आते हैं, 3 मेल 3 फीमेल, दहबता दहबतुमा दहबतुम दहबती 3 फीमेल के, दहबती दहबतुमा दहबतुन्ना, ये ख़त्म हो गया। दहबतो और दहबना, दहबतो और फर्स्ट पर्सन में दहबतो और दहबना। तो इंशाल्लाह इसको याद करने को 3 याद हो जाएंगे तो फिर 3 और याद कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा याद कर रहे हैं इसको। कैसे याद करेंगे हम? थर्ड पर्सन के 3 अच्छी तरह याद कर ले, 3 मेल फीमेल के। जब वो अच्छी तरह याद हो जाए तो सेकंड पर्सन पे को याद कीजिए। फिर एक साथ पूरे याद नहीं करें आप, थर्ड पर्सन को याद कर लीजिए अच्छी तरह। जब वो दिमाग में आ जाए, जुबान पे चढ़ जाए तो सेकंड पर्सन को याद कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद जो है ना फर्स्ट पर्सन याद है ऑलरेडी, दाब तो दाबना याद हो जाता है वो, तो बाद में जो है ना स्पीड आ जाएगी, वो को मसला नहीं। तो वो बाद में क्या है, इससे हेल्प होगी आप लोगों को। हाँ स्पीड वो बार बार थोड़ा सा, एक मसला क्या करने का, थोड़ा सा तन्हाई में बैठ के इसको जो है ना 25 मरतबा रटना पड़ेगा इसको। कैसे करेंगे आप? खाली औकात में बैठ के इसको क्या करना है आपको, अपना जो है ना इसके लिए एक तरह का जुबान का एक टंग ट्विस्टर के तौर पर जुबान को अपना मोड़ने के लिए, दहबा दहबा दहबू दहबत दहबता दहबना, दहबता दहबतुमा दहबतुम दहबती दहबतुमा दहबतुन्ना, दहबतो और दहबना, है ना। याद हो जाएगा, फिर वो रवानी आ जाएगी इंशाल्लाह, उसमें फ्लो आ जाएगा फिर, है ना। इसी पे इत्तेफा करेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते जो है ना इनकी एक्सरसाइजेस, इसमें अब वर्ब जो है ना, आप लोग कहते थे ना बुक 1 में वर्ब, तो दहबा और रजा, आप देखिए ढेर सारे अब जो है ना बारिश होगी वर्ब की, है ना। तो ये अब ये टेबल याद रखना इसलिए ज़रूरी कि वर्ब्स की बारिश होने वाली है।